I request Deputy Secretary to kindly do the honors by presenting the memento as a token of love and appreciation for this 53rd International Film Festival of India. Thank you, sir. Thank you. जोशी जी, प्रसून जी के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। एक ऐसी प्रतिभा, मतलब एक प्रतिभा कहना गलत होगा, ये समुच्चय है प्रतिभा के। और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 नेशनल अवार्ड्स, और अभी एक जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अभी इनको उत्तराखंड गौरव का भी सम्मान मिला है, उत्तराखंड रत्न का सम्मान मिला है प्रसून जोशी जी को। और प्रसून जी से बात करना is always a privilege for me, and thank you Prasoon Joshi ji for inviting me here, and thank you Ifi also. ये पिछले साल भी हमने प्रसून जी से बात की थी, और आज आप सब लोगों का भी बहुत आभार, क्योंकि जब दर्शक बहुत सारे होते हैं तो बात करने का आनंद दुगना हो जाता है। तो इसलिए एक बार आप लोग अपने लिए भी ताली बजाइए दर्शकों के लिए। आज का विषय है आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिरिक्स राइटिंग। मैं प्रसून जी से आग्रह करूंगा कि मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा, आप अंग्रेजी में जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ बायलिंगुअल हो जाएगा पूरा मामला। और ये जो विषय है, और आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट भी हैं, मकेन के प्रेसिडेंट हैं एड एजेंसी के, तो ये सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखें तो जो प्रसून जोशी बनते हैं, और उम्र इनकी अभी सिर्फ 50 वर्ष है, तो इतने कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करना, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा और व्यक्ति की मेहनत ही इनको यहां तक पहुंचा सकता है। प्रसून जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिरिक राइटिंग, इज इट ए क्राफ्ट टू राइट? द वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत आधारभूत सवाल पूछना चाहता हूं। लिखना क्या क्राफ्ट है? क्योंकि आप कुछ दिनों पहले आपने अनुभूत सत्य वाला जो आर्टिकल लिखा था, तो क्या अनुभूत सत्य से लेखन को कुछ मदद मिलती है, या वो क्राफ्ट किया जा सकता है कुछ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी himself is such an eminent journalist and a prolific mind whom I always respect, and I think when it comes, the question comes to of having a conversation with people like yourself here who are all of them, you are experts or budding writer directors and absolute talents here, so it's a privilege and honor as always to have a conversation with you. So one round of applause for Anji. Please read his articles, we love him, he's quite a person. Now the question is of, see, I feel that all of us as human beings want to express something, कुछ ना कुछ कहने को हम सबके पास है. We are all bubbling with ideas and
And since childhood, there is certain expression which we find. So I was with one of my friends years back, and his niece had come back from a school tour, a little girl, and she said, "Uncle, we went to this old, very old house." She, of course, was taken to some monument. So I was decoding. And Nikhil, my friend, he shouted, and the house shouted back at him. Now, this girl has not learned the word echo. उसने प्रतिध्वनि नहीं सुना है, echo word नहीं सुना. But she can experience what is happening. That there is something strange happened here. My friend shouted, and something shouted back. So that was a new experience for that child. And the child did not let it go past her. Registered it, reproduced it. Now, in a Jungian way, if you look at what you call it collective subconscious or collective unconscious, through which we communicate. Aap aur main, when we use language, we try to connect with the dots. So, all this experience of this child got capsuled into the word echo. The word echo captures what this child experienced. This is how human civilization progresses. That's why I feel it is very important to not let the languages go extinct. Because they are not, जब एक शब्द मरता है तो वो एक संस्कृति मरती है, वो एक एक्सपीरियंस मरता है, जिस एक्सपीरियंस को पूरा distilled experience in the form of a capsule of a word, when the word goes down extinct, that entire experience goes down. Because human race, human civilization has captured it in that form. So when it comes to craft of writing, to shilp जिसे आप हिंदी में कहते हैं, it is very important because this entire, plethora of, or the whole narrative of the experience is distilled in that. When we write poetry, there is a certain economy in it, and that economy expects you and me to tap into a collective unconscious, that I haven't said this, but I meant this. And that is the reason languages progress, and that is the reason craft comes in, where you say less and mean more, where you have got layers and layers of meanings and things hidden. You cannot possibly, capture all of it. A very important topic today is artificial intelligence. And the students of cinema also know that AI has entered script writing. AI is a human, kind of a parallel, sort of registered writers are there now, which are AI, which are not a people, but AI. Now, I have seen AI grow, and we were in Cannes, and a lot of exposure to what AI is doing in our field in cinema. The only place, and I understand the importance of data, I understand the processing of data, I understand the world where data accesses itself. Imagine कीजिए, you have gone to somebody's funeral. आपने एक चिता जलती हुई देखी अपने सामने. Seen a funeral pyre in front of you. And you're standing in front of your friend or someone, whoever was there, you're experiencing the entire place. And you are also feeling the heat of the funeral pyre. Or you're also smelling the burning of the body. Now you came back and you wrote something, your experience. Now that experience captured a certain part of that entire experience, not the entire part of it. A lot of things which you have subliminally experienced have not been captured in that. Maybe you will capture it later, maybe some other day you will talk about it. But you talked about रिश्तों में कैसे आंसू आते हैं, आपने ये बात की. लेकिन आपने स्मेल की बात नहीं की, लेकिन आपने हीट की बात नहीं की. वो आपके कहीं अवचेतन में, your subconscious has absorbed that.
AI has no way of accessing that smell. AI has all the way of accessing the data which is there in the form of your poem or your writing. That's second hand. The first hand experience of human will always. So I feel not threatened by AI. I feel we as humans have so many dimensions that AI will take a lot of time to be able to match up to it. So somewhere I think when we talk about craft, all these things become relevant, because कल को आप कहेंगे कि कविता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ही तो है, बना देगी. There is something called quantum sheep. If you read the experience on internet, you can read about it. It's quite an interesting experiment where they write letters on the back of the sheep and letters, and then those sheep को वो ऊपर से देखते हैं और sheep को छोड़ देते हैं. अब sheep जब मिक्स होते हैं आपस में, so some meaning comes out of it. जैसे देखो ऐसी पोइट्री है कि ये भेड़ इधर उधर गई और इनके ऊपर हमने शूट किया, तो देखो क्या पोइट्री निकल के आ रही है इसमें. ऐसा नहीं है. आई फील इतने सबलिमिनल कनेक्शंस होते हैं जो आपको कविता में मिलते हैं. एक ऐसी इमेज मिलती है जो शायद मैंने एक गीत लिखा था, मन के मंदिर एक एल्बम था, उसमें लिखा था मैंने कि खोली आंखों की खोली मैंने पाई अपनी बोली, मुझ में ही रहती थी मेरी हमजोली. तो इसमें खोली शब्द का प्रयोग मैंने 2 बार किया. बहुत सालों बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैं था, तो लड़की ने मुझसे कहा कि मैं बहुत समय हो चुका था, मैं सोचता था यार मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, किसी को पता भी नहीं लगा कि खोली एक क्रिया है और खोली एक संज्ञा है. खोली आंखों की खोली अपनी मैंने पाई अपनी बोली. And then somebody got up there, and I was very happy that somebody has noticed it. So you use this kholi in 2 different ways and all that. But ये जो शब्द विन्यास, ये जो हम करते हैं, ये सब कुल मिलाकर के कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. हम चाहे कितनी सिंपली उसे बोलें. तो आपका answering your question in long-winded way, I believe there is stuff. Okay, thank you. You talked about an album. मैं जब भी प्रसून जी से बात करने के पहले तैयारी करता हूं तो मैं सोचता हूं इनका एक परिचय लिख लूं ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन मैं ऑडियंस के सामने रख सकूं. हर बार कुछ न कुछ भूल जाता हूं, आज भी भूल गया. मैं ये बताना भूल गया कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन भी हैं, जिसको हम लोग सेंसर बोर्ड समझते हैं और समझते हैं कि इनका काम काट छाट करना है. कोई भी कलात्मक चीज लेके जाओ, कैंची चला के, मीडिया में हम लोग कहते हैं कैंची चला के वापस भेज देते हैं. इस पर सवाल पूछूंगा आपसे. लेकिन और एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रसून जी जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं. तो इनसे हम कुछ सुनेंगे भी आज. सुनना चाहेंगे आप लोग प्रसून जी से? भाई एक निवेदन है छोटा सा. प्रसून जी सामान्य रूप से बोलते हैं तो भी कविता जैसा लगता है. आप उनको बांधिए मत कि वो इंग्लिश में बोले. मतलब यदि वो हिंदी इनकी इतनी सुरीली और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, अब ये तो प्रसून जी की कोशिश करेगी. जितनी मास्टर ये सब हिंदी में. ओके, सप्रेषण होना चाहिए. ठीक है. तो मतलब मैं तो ये ध्यान रख रहा था कि हमारे ऑडियंस में कुछ गैर हिंदी भाषी लोग भी होंगे, तो कोई बात नहीं. मैं आपके अनुरोध, आपका आदेश सर माथे पर. एक प्रसून जी, अभी आपने एक एल्बम की बात की और आपने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में गीत लिखे हैं, संवाद भी लिखे हैं. पर मुझे एक आपका सबसे प्रिय एल्बम है. मैं अपनी बात करता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, शोभा मुद्गल ने गाया है, सीखो न नैनों की भाषा पिया. अब उसकी एक पंक्ति है, खोलो दिल की बोली पिया. या अगर मैं सही हूं तो मुझे 3री या 4थी लाइन है ना, 1-2 शब्द का इधर. हाँ, तो आप इसको पहले सुना लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे. आपके हवाले होंगे जो आपकी अनुमति जो. सो ये एक्चुअली इफ यू सी दैट रोड इट वेरी लॉन्ग बैक, बहुत पहले लिखा था ये. और आज अगर आप बैकग्राउंड ऑफ कोविड देखें, मास्क देखें, सब देखें, तो नैनो की भाषा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई. तो नैनो की भाषा रह गई थी. और तो पता नहीं लगते थे, मुस्कुरा रहा है, व्यंग कर रहा है, मुझ पर क्या कर रहा है, आंखों से ही सब कुछ पढ़ना पड़ता. तो मुझे लगा कि गाना एक तरह से पुनः जीवित हो गया किसी तरह से.
तो इसके कुछ हल्का सा हम कर देता हूँ मैं। जी जी प्लीज। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली सीखो ना, नैनों की भाषा पिया सुनना सीखो, तुम हवा को सन 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 कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। इतना उत्साह बना दीजिए कि मैं प्रसून जी से फिर आग्रह कर सकूं कि यहाँ पे। और एक कलाकार को क्या मिलता है? तालियां और दर्शकों का प्यार, और हम दे भी क्या सकते हैं। मुझे आपका ये लिखा हुआ गीत बहुत पसंद है, और इसमें जो आप कहना चाहते हैं या इसमें जिस तरह के शब्दों का आपने प्रयोग किया है या जो बिंब आपने तैयार किए हैं इसमें या उठाए हैं, मतलब सायास क्राफ्ट के माध्यम से लाए हैं आप या कला है आपकी, ये तो आप बताएंगे। लेकिन जब आप इस तरह के गीत लिखते हैं तो लोक में चले जाते हैं आप एकदम। आपका बचपन उत्तराखंड में बीता है, आपके पिताजी का तबादला अनेक क्षेत्रों में होता रहा, तो आपको वहाँ की बोलियों का अनुभव और वहाँ की रीति रिवाजों से भी आप परिचित रहे हैं, वो दिखता है आपके लेखनी में, वो दिखता है। तो जैसे मुझे एक और गीत आपका याद आता है, सास गारी देवे, है ना, याद है किसी को? ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा, मैंने जानबूझ के ये बोला कि ससुराल गेंदा फूल सबको याद है, लेकिन उसने सास गारी देवे। अब ये गारी शब्द जो आपने उपयोग किया है, ये मतलब बिहार में भी प्रयोग होता है, ये हरियाणा में भी प्रयोग होता है, और ये उत्तराखंड में भी प्रयोग, मतलब ये भारत भूमि की एक ऐसा शब्द है जो आंचलिक होते हुए जिसकी व्याप्ति पूरे देश भर में है। तो ऐसे शब्द कैसे आते हैं? ये क्राफ्ट तो नहीं हो सकता प्रसून जी, जैसा मैं समझता हूँ। ये तो मतलब आप कुछ महसूस करते हो तभी कुछ। तो यहाँ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो ये जरा बताइए कि शब्द आप इस गीत लिखने में ऐसे शब्दों को प्रयोग करके जो आप संवाद करते हैं सीधा, वो कम्युनिकेशन के आप आदमी हैं उसका अनुभव है या आपके जीवन का अनुभव है या आपका क्राफ्ट है? बहुत सुंदर सवाल है। पहले तो जो मैंने अभी गीत गाया था ये मेरे मित्र शांतनु मोहिता जी ने कंपोज किया था। बिकॉज मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, देखिए हम कवियों को अक्सर शिकायत रहती है कि जो सिंगर्स हमारा गाना गाते हैं हमारा नाम कभी नहीं बताते, तो इसलिए मैं इन त्रुटि नहीं करना चाहता हूँ। तो शांतनु जी के लिए मिलता है। दूसरा, आपने सही कहा, जो आंचलिक भाषाओं के शब्द हैं वो कहीं आपके अंतर्मन में चले जाते हैं। जैसे एक गीत मैंने लिखा था, तू धूप है जम से बिखर, तू है नदी, आपने सुना है? इससे ये बच्चे जब इंडियन आइडल या इन जगहों में गाया करते हैं तो मैं देखता हूँ वो छम से बिखर जाते हैं। कहते हैं धूप है छम से बिखर, क्योंकि छम ही सुनते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड के लोग जानते हैं छम नहीं झम है, क्योंकि वो धूप के लिए झम शब्द का प्रयोग करते हैं कि झम से घाम लगो, ऐसे बोलते हैं, झम से घाम धूप आता है। तो उसके धूप के इसी देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ओनोमोटोपोइया इन पोएट्री। आप देखेंगे कि बंगाल में है और उत्तराखंड में भी और कई हमारे आंचलिक जो शब्द की ध्वनि है उससे शब्द निकले हुए।
तो झम ऐसा उनको लगता है कि जैसे कि कोई गहना या कोई चीज गिरी है, जैसे धूप गिरती है जमीन पे और एक साउंड उसने पेश किया है। तो वो मैंने सुना था, तो मैंने जब लिखा कि तू धूप है झम से बिखर, तू है नदियों में खबर, गाया भी झम ही गया वो, लेकिन सुनने में वो एक उसकी ध्वनि है, उसका एक अपना आनंद है। गाली को गारी कहते हैं, तो उसमें एक अलग, उसकी एक अलग फीलिंग होती है, एक खुरदुरापन है उसमें, एक अपनापन है उसमें खुशबू होती है। इसलिए मुझे लगता है कि आंचलिक भाषाओं को बचाना, उनके शब्दों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। मैंने अभी उत्तराखंड का सेशन चल रहा था, मैंने कहा कि बहुत आवश्यक है कि बांसुरी की आवाज कहीं ढोल की आवाज में खो ना जाए। बांसुरी सुनने के लिए थोड़ा दूर जाके उसको सुनना ही पड़ेगा, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। और ये जो हमारे आंचलिक भाषाओं में है, ये भगिनी भाषाओं की जो हिंदी और भाषाएं हैं और भी हमारे देश में रीजनल लैंग्वेजेस, शब्दों में वो खुश, और वो शब्द जो है कहीं अनुभव से जुड़े हुए हैं। और आप भी जानते हैं चीज, जब आप बोरो करते कोई शब्द, ठीक है, हर विस्तार होना चाहिए भाषा का, लेकिन इन शब्दों में जो पकड़ होती है या जाके मर्म पर उंगली रखते हैं, वो संभव नहीं है। इसलिए मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि मैं भटक रहा हूँ तो कोई एक शब्द आता है, और मुझे लगता है धूप का अपना महत्व है और घाम का अपना महत्व है ना। धूप अलग चीज है और घास अलग चीज है। धूप पर चलना और घास पर चलना अलग अलग बात है। अब आप कहते हैं कि जी करता है तो अलग बात है, दिल करता है तो अलग बात है। दिल मिचलाता नहीं, जी मिचलाता है, दिल मचलता है। तो ये जो these are the nuances of the language, of every language has that, and these little differences are the ones which create the shades, different shades of language. And it is important, and your question that why would you use those words, why would you replace, कई बार गुलजार साहब और मेरी बात होती थी तो हम लोग अक्सर इसमें चर्चा करते कि भाई कोई ना कोई नया शब्द डाल देना चाहिए, लेट पीपल ट्राई ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। देखिए जितनी कोशिश क्रिएटर की और जितनी जिम्मेदारी क्रिएटर्स की है, उतनी ही जिम्मेदारी सीकर्स की भी है। भाई चम्मच से थोड़ी खिलाया जा रहा है, आप भी तो थोड़ा 2 कदम आइए, मैं भी 2 कदम आऊं, तभी तो मोहब्बत होगी। मैं ही आपके आंगन में कूदता रहूं आकर के, आप वहां से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो ये तो गलत बात है। थोड़ा दोनों को बढ़ना पड़ेगा। आप एक नया शब्द सीख लीजिए, एक मैं शब्द सरल कर लेता हूं आपके लिए, लेकिन सारा सरलीकरण कर दूं, everything I throw out of the window because you don't understand, it's better you don't understand. ये एक प्रसून जी की बात से सहमति है। एक पंडित नरेंद्र शर्मा गीत लिखते थे, और जब पंडित नरेंद्र शर्मा ज्योति कलश छलके लिखते थे तो वो भी उतना ही पॉपुलर होता। तो मुझे लगता है सर कि जनता तो गीतकार से मोहब्बत करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन जब गीतकार गटकाइले सैया फेविकॉल से और चिपकाइले सैया क्या वो लिखने लगते हैं, है ना। एक तरफ आप बातें हम करते हैं, ज्योति हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, ज्योति कलश छलके और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, और इस तरह के गीत लिखे जाते हैं, तो इसमें जनता कैसे मोहब्बत करेगी? वो तो छुप के ही सुनेगी ना, वो तो ईयरफोन लगा के ही कुछ करेगी, छुप के क्यों सुनती है? देखिए अगर आप चाहते हैं कोई बदलाव आए तो सबसे बड़ा बटन तो आपके पास है ना, उसको अस्वीकार करने का बटन आपके पास है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बर्थडे में अपने शाम को तो उस पार्टी में डांस करूंगा और दिन में मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। I will talk about this is an objectification of women during the day, and in the evening I'll dance on those songs. So ये दोहरे मापदंड तो नहीं कर सकते। थोड़ी जिम्मेदारी तो सुनने वाले की भी बनती है। और देखिए मार्केट की कितनी ही हार्श रियलिटी हो, कितनी ही क्रूरताएं हो मार्केट की बात, लेकिन मार्केट हैज वन थिंग वेरी क्लियर, दैट इफ इट डजंट सेल इट स्टॉप्स गेटिंग मेड, उसका बनना ही बंद हो जाता है। ये बाजार की शर्त होती है कि जो बिकता नहीं वो टिकता नहीं।
तो कहीं ना कहीं उसका फायदा, नॉट दैट आई कंप्लीटली एग्री विद द मार्केट फिलोसफी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज आई सेड अबाउट moments of our languages and moments of our art have to be protected. They might not have the great market, but it's great responsibility of the civilization that we protect them. That's also important. Market might not support it, and we have to support it irrespective. जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं या ऐसे कोई आर्ट फॉर्म्स हैं जो एकदम अब लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, those art forms are dying. So I think almost everybody says कि अगर वो इतना loud enough नहीं है तो नहीं बचेगा, तो फिर तो बहुत सी चीजें नहीं बचेंगी. फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई जो उतना समर्थ नहीं है, जो उतनी तेजी से नहीं दौड़ पा रहा, वो भी आपके साथ चल पाए, तभी आप उसको सिविलाइजेशन कहते हैं. वरना फिर वो एनिमल किंगडम से हमारे सिविलाइजेशन में फर्क क्या है? आप सही कह रहे हैं. मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उस समय मॉर्निंग शो में फिल्में चला करती थी और अजीब अजीब से नाम होते थे उसके, स्वर्ग के द्वार और पता नहीं क्या, हथेली पर क्या, और वो मॉर्निंग शो में 8-9 बजे चला करती थी वो फिल्में. जनता ने नकार दिया, देखना बंद कर दिया, तो वो फिल्में लगी बंद हो. तो रुचियों का परिष्कार का जो औजार है वो आपके हाथ में. हम एक प्रसून जी जिसके जो साथी गीतकार हैं जो चिपकाते हैं फेविकॉल से, उनको रोक भी सकते हैं और ज्योति कलश को छलका भी सकते हैं. हमारे और आपके हाथ में प्रसून जी. लेकिन मैं थोड़ा ये मुझे लगता है कि आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो ये, और प्रसून जी पिछले 5 साल से हैं, 2017 से जहां तक मुझे याद है, और प्रसून जी के समय में कुछ विवाद भी हुए पद्मावत को लेकर, आप लोगों को याद होगा, और किस तरह ग्रेसफुली उस विवाद को सेंसर बोर्ड ने हैंडल किया. कैसे ये जो फिल्में आती है, जो हम लोगों तक पहुंचती है, जो हम देख पाते हैं फिल्में, उसके पहले क्या मतलब आप लोग कैंचियां क्यों चलाते हैं इतनी, या क्यों इतनी ये छवि बन गई है कि मुझे तो कई बार लगता है कि अननेसेसरी ऐसा होता है क्या, या कुछ आपका अनुभव अलग है? नहीं, अननेसेसरी तो कुछ नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हम जब एक समाज में रहते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम्स बनते हैं. जैसे कि आपने कहा कि भाई हम सड़क पे चलने के कुछ नियम बनाते हैं. एनिमल किंगडम में तो कपड़े नहीं होते हैं, पर हम लोग वी सेलिब्रेट वेयरिंग क्लोथ्स. हम उसको बड़े खूबसूरती से सजा बजा कर वस्त्र पहनते हैं, उसको आर्ट फॉर्म बनाते हैं, फैब्रिक डिजाइन पे जाते हैं, डिजाइन बजाते हैं. कोई उससे ये भी कह सकता है ये तो मेरा फ्रीडम आप ले रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, मुझे नहीं पहनने. लेकिन कहीं एक मूक सहमति है. देयर इज अ unset understanding in human civilization. We all want to see each other in certain way. और भाषा का इस्तेमाल है कि भाई I want to talk in public, हम लोग आपस में इस तरह से बोलेंगे. एक कोड ऑफ कंडक्ट हमारा इवॉल्व होता है as we go. It's a dynamic state, or ever evolving, but constantly we want to be, living in a society for each other, and कहीं ना कहीं दूसरे की परवाह या दूसरे के बारे में सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है. तो एक इस तरह से सिस्टम इवॉल्व होता है. और दिस फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड मैंने नहीं बनाया, बहुत पहले से चला आ रहा है. मैंने तो उसको कोशिश की है कि उसको ग्रेसफुली आई हैंडल दैट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. इनफैक्ट आई हैव मेड अ डिस्टेंस. मैंने तो दूरी बनाई है कि मैं फिल्में भी कम कर रहा हूँ, लिख भी कम रहा हूँ कि भाई निष्पक्ष रहूं, ऐसा नहीं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट हो. इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा ये व्यावसायिक रूप से अलग प्रश्न है मेरा, उसको आप मतलब हाईजैक आप उस पे रहे. नहीं, तो ये जो प्रश्न है कि वहाँ क्या होता है जी, वो एक तरह का हम लोगों का कंडक्ट है, ह्यूमन कंडक्ट है कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं. और इसको मैंने यही प्रयास किया है कि एक समाज से उसको समझा जाए और सुलझाया जाए कि भाई समाज क्या देखना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं. You cannot say that the films which are made
वो स्वांतः सुखाय क्रिएशन है, स्वांतः सुखाय जिसका मतलब होता है जस्ट फॉर माई ग्रेटिफिकेशन आई वुड लाइक हम डायरी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, मेरा मन है मैं ट्विटर लिखूं, सही बात है। बट व्हेन यू गो आउट सीकिंग शेयर ऑफ वॉलेट, then you can't say I don't respect the share of voice of the person whose wallet I'm seeking. You will have to respect the voice. You'll have to say, okay, since I want you to pay for this particular product, I would respect what you think the product should be. Because it's not just for my fun, I've moved beyond it, I've made commerce out of it, business out of it. The share of wallet will come with share of voice. And as far as we understand it and we find a right fine balance between complete expression and responsible and sensitive sort of duty towards the milieu we live in, the society we live in, I think we can solve it. And that has been my approach. Well, somebody can say कि आपसे पहले ऐसा नहीं था या कोई तो ऐसा नहीं हो सकता है, तेरा त्रुटियां होती है बीच में, but as far as your intent is to solve it, intent is to not get into blame game, intent is to not कि लोगों को कटघरे में खड़ा करो, और जिसको नकारात्मक सोच रखनी है देखिए वो तो नकारात्मक सोच ही रखेगा कि झील में पत्थर ही पत्थर हैं, झील भूल चुकी है झील होना, अब कहाँ बची गौरैया की फुरफुर अगर हर कोई चाहे चील होना। क्या बात है, क्या बात है प्रसून जी। लेकिन वो इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और मेरा है, एक सेंसर बोर्ड की महिला सदस्य है, नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं, आप चेयरमैन भी हैं, आप समझ सकते हैं। एक दिन उन्होंने शाम में मुझे फोन किया और शी वाज क्राइंग। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा इतनी वल्गर फिल्म थी जो हमारे पास सर्टिफिकेशन के लिए आई थी, इतनी वल्गैरिटी थी कि हम मेल मेंबर के साथ बैठ के उस फिल्म को नहीं देख पाए जब वो सर्टिफिकेशन। तो ऐसे भी क्या अवसर आते हैं, आप इसको कैसे हैंडल करें? ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और इनफैक्ट मैंने तो यही कहा भी, देखिए आप योर चॉइस टू सिट थ्रू और नॉट, बट समटाइम्स आप लोगों को पता नहीं लगता कि किस तरह तक की चीजें सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई हो जाती है। एंड उस पर फिर अगर आकर कोई इर्रिस्पॉन्सिबली विवाद करने की कोशिश करे और समझने की कोशिश न करे कि कितना काम वो सारे जो लोग कमेटी मेंबर्स हैं उनको कितना काम वो महिलाएं, 70% तो हम लोग महिलाएं रखते हैं। It's lopsided for me. I have always said that I think since the women are, or who are these women? These are teachers, doctors, from all walks of life. Those are part of the committee. Now, why it's important for women for me? Because वो माँ भी होती हैं, बहन भी होती हैं, कई बार receiving end पे होती हैं. It's important that they are comfortable. Since I have come, I have made sure that there is unfair representation of women, lopsided representation of women in those committees. And because जिस तरह से वो women society को shape करने में interest देती है, I'm not being a man, I'm not doing male bashing, but मुझे लगता है कि ज़्यादा interest women देती हैं, उनके ऊपर दायित्व होता है तो मुझे थोड़ा तसल्ली होती है। पर अगर वो बैठ ही नहीं पा रही हैं, तो समझिए कि उनको क्या-क्या देखना पड़ता है, और उसके बाद उनको उस पर अपने कमेंट देने पड़ते हैं, और उससे भी लोग ऐसे होकर लड़ने जाते हैं या उस पर विवाद करने की कोशिश करते हैं। ये ना बस समझते हुए कि भाई आप भी परिवारों से आते हैं, आपके भी फैमिली में लोग हैं, there is a difference between public viewing and private viewing. There is a huge difference. आप एक पुस्तक में जो कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जब आपके बगल में कोई बैठा हो, देखिए हम किस तरह से, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो थिएटर में जो लोग देखते हैं कई बार दूसरे का रिएक्शन भी देखते हैं, हंसने से पहले भी देखते हैं, हंसने के बाद भी देखते हैं, क्योंकि somewhere you are exposing your likes and dislikes. So I think psychologically we have to understand that public viewing and private viewing has different code of conducts, and we'll have to respect that. It's all about respecting human beings and respecting other people as well. Apart from respecting my freedom of expression, it's important that I respect the people whom I'm expressing it for, and especially when I'm seeking their money. That's what I say. जहां मैंने आपको रोका था वो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आप 5 साल से सेंसर बोर्ड जिसको
सर्टिफिकेशन, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड कहते हैं, लेकिन बोलचाल में सेंसर बोर्ड ही कहते हैं। पता नहीं कहाँ से सेंसरशिप लगा और अंग्रेजों के ज़माने से ये नाम चला। और तो आप, मुझे ऐसा महसूस होता है और आपके प्रशंसकों को भी ऐसा महसूस होता है प्रसून जी, कि आपने फिल्मों में लिखना कम कर दिया है। कि यह सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष होने के नाते आपने एक दूरी बनाई, ये जानबूझकर सायास किया गया है या कुछ और है? आप बताइए आज। नहीं, इसमें तो है, सत्य है कि दूरी मैंने थोड़ा सोच समझ के भी, कई फिल्म कंपनियों के मैं बोर्ड्स में था, लॉट ऑफ दी बिग फिल्म कंपनीज के जिनके मैं बोर्ड में था, उनसे भी मैंने त्यागपत्र दिया। ये मेरा स्टाइल है काम करने का। मैं निष्पक्ष रहना चाहता था, मैं निष्ठा से काम करना चाहता था। सी आई व्हेन पीपल से कि ये वो फलाना ढिमाका, मैंने कहा आपको जो कहना है मेरे बारे में कहिए, लेकिन याद रखिए मैं फैक्ट्री में तराशा हुआ पत्थर नहीं हूँ। मैं वो पत्थर हूँ जो नदी के किनारे आपको पड़ा हुआ मिलता है, जिसने 50 ठोकरें खाई है उसके बाद उसका आकार गोल हुआ है। ऐसे गोल नहीं बन गया। मेरी फैमिली से कोई फिल्मों में नहीं था, ना बम्बई में कोई आया था, ना मैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में किसी को जानता था। आई फाउंड माई ओन वे एंड मैंने अपनी ठोकरें खाई और उन ठोकरों का प्रभाव ये है कि कहीं गोलाई आ गई और वो गोलाई आपको दिखती है। तो सवाल ये है कि फिर मुझे ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अपना काम कैसे करूंगा। अगर मैंने ये लिया तो आई थॉट आई विल कीप अ डिग्री ऑफ सेपरेशन. I will not try to be part of the project whom I am giving certification for judging. So somewhere commercially it has, yes, I have to pay a price for that. And उसमें कई लोग खुश और नाखुश भी होते हैं. हमारा देश है. People think that I've been friends with everyone in the industry, a lot of my friends, but I have kept that distance for being able to do it judiciously, fairly, so that everybody gets to give fairly and everybody can reach out equally. That's my style of doing. Well, if that comes with a price, yes, I have paid that price. प्रसून जी से आप सब लोगों की बातचीत भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त जो एलोकेटेड मुझे है अभी बचा हुआ है सर, आऊंगा आपके पास ही. मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि धैर्य थोड़ा सा रखिए और हमारे साथ बने रहिए. प्रसून जी, यहाँ बच्चे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ लिरिक, गीत लिखने की कला पर बातचीत कर रहे हैं. क्या संभव है कि मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप अपनी कुछ कविताएं सुनाएं और उनकी पंक्तियों पर फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं. गीतों की बात हो रही है तो अच्छे फेमस गीत तो आपने सुने ही हैं, एक दो बार उन पर भी बात कर सकते हैं. एक तो मैं बात करूंगा इससे पहले कि मैं एक वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच आर नॉट सो पॉपुलर एंड आई जस्ट मेट, वो मुझे अभी ताज़ा हो गया. मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं जाता हूँ, जो मुझे लगता है वो करता हूँ. वो बच्ची मुझे बाहर मिली, उसने कहा कि उसने एक फिल्म में काम किया, ब्लैक में वो बच्ची थी और अब वो शी इज अ बिग गर्ल देयर. So I said, you're the same girl and she's grown up. So I was remembering that I wrote one song for that film, which was संजय बंसाली जी ने मुझे कहा था वो होगा फिल्म में, लेकिन फाइनली वो टाइटल में ही था अंदर, क्योंकि he decided to make a songless film. So it came in the titles. मुझे लगता है कि वो एक बच्चा अनाथ न रह जाए, इसलिए उसको मैं सुना दूंगा आपको, जिससे कि उसको सुना दूंगा हल्का सा. बट द क्वेश्चन आई थिंक इज, यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं या डायरेक्ट भी करना करते हैं या जिस भी क्राफ्ट से आप फिल्म के जुड़े हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑथेंटिसिटी, अपनी आवाज ढूंढना. आप अनपैरेलल्ड है. प्लीज बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, देयर इज नोबडी लाइक यू. Believe me, there is nobody like you. And till such time you tap into that unique you, your job is not done. आप तब तक काम करते रहिए जब तक आप उस जगह को उंगली नहीं रखते हैं, जब तक वो चीज एक्सप्रेस नहीं हो जाए जो आप हैं. और आपको खुद पता लगेगा, कोई नहीं बता सकता आपको कि दिस इज व्हाट यू आर. सो डोंट एवर ट्राई एंड इमिटेट एनीवन. किसी की कॉपी मत करो. ना आप जैसा कोई हुआ है, ना आपके जैसा कोई होगा. क्या बात. ऐसी ये सृष्टि का क्रम यही है. आपके जैसा कोई बना ही नहीं, तो इसलिए आपने जैसा लिखा है वैसा होना भी नहीं चाहिए कहीं. इसलिए जरूरी है कि आप वो करें. मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अपने ही चीजों से मैं प्रेरित होता हूं. आई वाज आल्सो, मैंने बहुत पापड़ बेले. I have also studied science. I was a student of physics. I have taught physics also, by the way.
इन मेरठ में मैंने 6 महीने फिजिक्स पढ़ाई भी है। तो जब मैं गाना लिख रहा था रंगे बसंती का, मस्ती की पाठशाला, तो उसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। तो कई बार लोग पूछते हैं साइंस की एजुकेशन का क्या फायदा है, तो ये फायदा देखिए, तेजाब नहीं लिखा मैंने H2SO4 लिखा, वरना मैं तेजाब लिखता, H2SO4 कैसे लिखता। तो कहीं कोई चीज जो भी आप सीख रहे हैं, कहीं सीख रहे हैं, नथिंग गोज वेस्ट। बच्चे के साथ खेल रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। I was writing तारे ज़मीं पर songs and all the images has come out of my daughter. She was 2.5 years old that time. तो मुझे I have just described her कि देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर, होना जाएंगे तारे ज़मीं पर। क्या बात है। अब ये unless you have held a child's hand, you won't be able to experience, you know. जैसे बातें कभी जैसे छलके कभी मम्मम पानी, मैंने लिखा उसमें मम्मम पानी, मम्मम बोलते बच्चे, क्यों नहीं यूज कर सकते आप पोइट्री में मम्मम? तो आई यूज कभी बातें जैसे नाना नानी, दादा नानी, जैसे कभी छलके जैसे मम्मम पानी। अब ये शब्दों का प्रयोग है, क्यों नहीं कर सकते आप, you know? तो वो ऑथेंटिसिटी ढूंढना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ विद हम्बली दैट आई हैव फाउंड दैट वॉइस कंप्लीटली, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट, आई स्टिल कीप सीकिंग दैट। देखिए परम भाषा क्या है, वो मौन की भाषा है। जब आप सब कुछ कह देते हैं तो मौन हो जाते हैं, मैं भी समझ लेता हूँ, आप भी समझ लेते हैं, ना आप कुछ बोलते हैं ना मैं कुछ बोलता हूँ। That's ultimate spirituality. There is nothing to be said. What has to be said has been said. What has to be understood has been understood. उससे पहले हम सबको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो जब तक वो मौन की भाषा नहीं मिलती, तब तक हमें शब्दों से काम चलाना ही है। तो शब्दों को तराशते रहें, कभी जाकर शायद खामोश हो जाएंगे। खामोश करिए मत, खामोश होने दीजिए, शर्त यही है। So that सफर किसको लक्ष्य मिला है? लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। इस पल की गोलाई देखो आसमान पर लुढ़क रही है, इस पल की गोलाई देखो आसमान पर लुढ़क रही है, नारंगी तरुणाई देखो दूर क्षितिज पर बिखर रही है। पक्ष ढूंढते हैं वे जिनको जीवन ये स्वीकार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं। प्रसून जी, एक सवाल मुझे आपकी अभी ये बात सुन के दिमाग में आया। आप कभी कभी मुझे लगता है कि आप दार्शनिक होने की राह पे चले जा रहे हैं, और कभी कभी मुझे आपको पढ़ते हुए, आपसे बातचीत करते हुए लगता है जैसे आपने कहा कि समाज इंटरटेनिंग हो गया है। एक दिन हम आपसे बातचीत कर रहे थे कहीं सूरत में या कहीं, याद नहीं है, फोन पे कर रहे थे, आपने कहा समाज जो है वो इंटरटेनिंग हो गया है। अब पुत्र भी पिता से कहता है यार पापा तुम बहुत बोरिंग हो यार, माय फादर इज नॉट इंटरटेनिंग। ये क्या है? ये न्यूज देख के अगर आदमी ये कहे यार न्यूज में मजा नहीं आया, यस भाई न्यूज का काम इन्फॉर्म करना है, मजा देना तो नहीं था। तो मजा देने के लिए जो न्यूज देखे थे, अब वो अच्छा उसने कहा मुझे मजा नहीं आया, न्यूज बनाने वाले ने भी सुन लिया यार मजा नहीं आ रहा है लोगों को न्यूज में, मजे वाली न्यूज आओ। तो वो मजे वाली न्यूज में वो कुछ सांप और नेवला ले आया, बिकॉज शुरुआत कहाँ से हो रही है? हर चीज में एंटरटेनिंग। माँ उसको एंटरटेनिंग नहीं लग रही है, माँ बड़ी बोरिंग है। अच्छा माँ बड़ी बोरिंग है तो वो भी अब फ्रेजेस में बात करें, हम लोगों की भाषा जो है उसमें पंच हो गया। See, the human attention span as per the latest studies is 8 seconds now, which is 1 second less than the goldfish. तो इन एडवर्टाइजिंग के जो कोई लोग होंगे यहाँ पे, उनको मालूम है हम लोग वी टॉक इन एडवर्टाइजिंग about front loading of messaging today.
तो फ्रंट लोडिंग मतलब कि 30 सेकंड का जो अगर आपका कमर्शियल है उसमें 8 सेकंड में जो शुरू में आपने बोल दिया वही महत्वपूर्ण है, बाकी तो बकवास। सो द लाइफ भी अब लोग हम ये मानने लगे कि 8 सेकंड से ज्यादा माँ बोरिंग है, 8 सेकंड से ज्यादा पिता बोरिंग है, 8 सेकंड का मैसेज हो, मतलब कहीं सब नहीं रहे, ये शॉर्टनिंग एवरीथिंग, किसी के पास जल्दी बताओ यार। अब ये हुआ क्या कि पैंडेमिक के टाइम पे एक्चुअली ये मोटी बात करें, मोटी बात बताया, कहीं बात बारीक पे आई है, लोगों को थोड़ा टाइम मिला तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा मुझे इसका एसेंस ये कुछ सुन। The time was there and people have introspected. You know, I was very unfortunate in the pandemic time. I lost both my parents, one after maybe 1 year's time. So it was very heavy, the time was very heavy. And actually, since we are here, I will read this poem which I wrote in this time. It's जो अच्छी हिंदी जो नहीं समझते उनके लिए मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, पर ये थोड़ा हिंदी में है। कुपित शब्द का अर्थ है नाराज, एंग्री और अनहैप्पी। कौन कुपित है? और आपने ये सबसे पहले पब्लिश की थी एक बार। कौन कुपित है? मेरे अश्रु अश्रु होने में इस संस्कृति का कैसा हित है? कौन कुपित है? संचित कर्मों का घट लेकर क्या मेरा प्रारब्ध खड़ा है? संचित कर्मों का घट लेकर क्या मेरा प्रारब्ध खड़ा है? क्या मेरी सारी त्रुटियों का लेखा जोखा बहुत बड़ा है? प्रश्न भी आहत है और उत्तर भी मेरा पीड़ित है। कौन कुपित है? क्या वीणा को कसते कसते मैंने सुर खंडित कर डाला? क्या वीणा को कसते कसते मैंने सुर खंडित कर डाला? भोग नृत्य में मग्न में भूल गया था क्या पग छाला? क्या वीणा को कसते कसते मैंने सुर खंडित कर डाला? भोग नृत्य में मग्न में भूल गया था क्या पग छाला? अभी तो उत्सव था, पर अभी तो उत्सव था, पर क्यों अब मोह भंग मुखरित है? कौन कुपित है? विस्मृत सत्य बताने को क्या मुझ पर यह विपदा है आई? विस्मृत सत्य बताने को क्या मुझ पर यह विपदा है आई? मुझको विनय सिखाने को क्या सृष्टि दृष्टि बनकर लहराई? जीवन दर्शन कौन रहा है, पर यह मन फिर भी चिंतित है। कौन कुपित है? यह मानव सुख क्षण में बोलो माया क्या है कैसे जाने? यह माया सुख क्षण में, यह मानव सुख क्षण में बोलो माया क्या है कैसे जाने? पंच तत्व का लाड़ मिले तो मैं नश्वर हूं कैसे माने? मृत्यु परे गंतव्य कहां है कैसे जाने जो जीवित है? कौन कुपित है? बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखें H2SO4 से लेकर और इस कविता तक एक आपको महीन सी यात्रा दिखाई देगी, या व्यक्ति का वो अनुभव दिखाई देगा जो ये तभी हो सकता है जब उसको उस भाषा पर अधिकार हो। तो छात्रों से मेरा अनुरोध यही है कि जिस भी भाषा में लिखें उस भाषा को जरूर, उसकी परंपरा को, जैसे इनकी कविताओं को सुनते हुए मैं बहुधा इनको कहता हूं कि मुझे दिनकर की याद आती है। मैंने दिनकर को बहुत बचपन में सुना था, वो तान तान फन ब्याल मैं तुझ पर बांसुरी बजाऊं, और जिस उसमें वो गाते थे वो मतलब दृश्य खड़ा हो जाता था। उसी तरह जैसे अभी प्रसून जी कह रहे थे कौन कुपित है, तो जब आप शब्द को बिंब की तरह या शब्द को दृश्य की तरह सामने देखेंगे तो मतलब कविता का आपको महत्व या गीतों का महत्व पता चलेगा। प्रसून जी अगर कुछ कविताएं आप सुनाएं। ये गीत जो ब्लैक में कह रहा था जी, ब्लैक वाली ब्लैक का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि अगर ये में होता तो और भी उसका एक इम्पैक्ट होता, हालांकि उन्होंने टाइटल में रखा है इट कैप्चर्स समवन जो जिसके विजुअल और ये एक्सपीरियंसेस नहीं है, सिर्फ बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सिर्फ सुनने का एक्सपीरियंस है। ये कैसे उसको जीवन कैसे उसको महसूस होता है। हाँ मैंने छू कर देखा है, हाँ मैंने छू कर देखा है। इफ यू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म, तो टच बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। स्पर्श जो है वो उसकी अनुभूति बहुत
ज़रूरी हो जाती है। और मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, पर मैंने कोशिश की इस गाने में समझने की, और आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट वी कैन ट्राई। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। हाँ, मैंने छूकर देखा है। रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है। रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है। हाँ, मैंने छूकर देखा है। गरम गुनगुनी धूप से बातें की है मैंने। गरम गुनगुनी धूप से बातें की है मैंने। पानी के बहने में हंसी सुनी है मैंने। सब कहते हैं दीप बुझा है। सब कहते हैं दीप बुझा है, लेकिन बाती सो जाती है। हाँ, मैंने छूकर देखा है। बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है। बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है। बिन बोले मन खोले वो अधिकार सुना है। बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है। बिन बोले मन खोले वो अधिकार सुना है। लम्हों की उंगली थामे कुछ यादें आंगन में आती हैं। हाँ, मैंने छूकर देखा है। अब देखिए, इसके पास विजुअल सेंस नहीं है और शब्दों का मेरा प्रयोग है कि अब कैसे एहसास कर रहा है ये व्यक्ति। ठंडा ठंडा रंग होता है इन बूंदों का। ठंडा ठंडा रंग होता है इन बूंदों का, और मुलायम रंग होता है इन फूलों का। चुभने वाले रंग पहनकर जो लड़की है वो शादी में जोड़ा पहन के आई है। आप जो देख सकते हैं उसको चुभने वाले रंग कहेंगे, बिकॉज इट इज वेरी लाउड कलर, बट सी व्हाट शी मीन्स बाय इट, शी कैन टच फील द सलमा सितारे उसको हाथ में कि ठंडा ठंडा रंग होता है इन बूंदों का और मुलायम रंग होता है इन फूलों का। चुभने वाले रंग पहनकर दुल्हन सज कर जाती है। हाँ, मैंने छूकर देखा। क्या बात है। मतलब कहाँ पवन गुलाबी को छू करके उसके पवन के गुलाबी होने को महसूस कर रही है। खैर, जब शब्द पर आप जितना विचार करेंगे अर्थ उसके उतने ही खुलेंगे। एक दो प्रश्न लेता हूं मैं सामने से, क्योंकि ये और उसके बाद फिर आपसे माइक अगर कहीं हो। जी, सबसे पीछे से आते अंतिम पंक्ति से, फिर मैम आपके पास आऊँ। थैंक यू वेरी मच। प्रसून जी और अनंत जी आपको सुन रहे थे, ऐसा लगता है कि और भी सुनते रहे। आज प्रसून जी, अपना नाम बता दें तो। जी, रवि प्रकाश टेकचंदानी, दिल्ली से हूँ। सिंधी भाषा पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रसून जी, आपने अपनी बात रखी आज के स्तर को लेकर के। मैं आपको उस पंक्ति और उस छोर पे ले चलना चाहता हूँ जब पहला प्रसून पहली कविता लिख रहा था। उस समय के अनुभव क्या थे? आज आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन क्या उस समय आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा था? मेरा प्रश्न ये है। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इस बारे में भाग्यशाली कहूंगा, मैं किसी पर आक्षेप नहीं, हर एक का अपना सत्य होता है, लेकिन कहीं थोड़ा हठी हूं मैं, थोड़ा अड़ियल हूं। तो मुझसे शुरू में भी ऐसा कुछ नहीं, कोई आइटम नंबर जैसी बात शायद नहीं होती थी मेरे साथ। शायद मैं इतना को कवि का जो एक वरदान नहीं मांगूंगा या याचक नहीं हूं, ऐसा मेरे अंदर भी एक फीलिंग हमेशा से रहा कि मुझे वो एक सरस्वती पुत्र होने का थोड़ा गौरव रहा। मुझे लगा मुझमें अंजलि या डुबकी भरने के लिए किसी को आना चाहिए। तो maybe I was fortunate that also people seek me and they like me। मुझे तो ये लगता भी नहीं था कि फिल्मों में, क्योंकि दिल जिगर फेफड़े गुर्दे ये सब मुझे पता ही नहीं थे, तो इस तरह की भी शब्दावली नहीं थी। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई मोस्टली हिंदी कविता में या फोक म्यूजिक में, आंचलिक भाषाओं में, लोक गीतों को सुनकर मैं बड़ा हुआ। तो वही भाषा थी। मुझे लगा था कि टेकर्स होंगे नहीं शायद। That's the reason I was parallelly doing my day job. I was doing advertising and I did MBA. ये सब करता रहा मैं। तो मुझे नहीं लगता था कि people will take. But there was a time when people started liking। हम तुमसे शुरू हुई जर्नी, वो फिर धीरे धीरे लगा। फिर मुझे भी अपने को, देखिए, आप भी लगातार सुलझती हुई प्रक्रिया है। आप शुरुआत करते हैं किसी बिलीफ से,
फिर आपको लगता है मेरी भाषा में ये शब्दों का और मैं प्रयोग करूंगा या इस थॉट को एक्सप्लोर करूंगा, और वो आप करते चलते हैं, वो आप थॉट एक्सप्लोर करते चलते हैं। कई बार कई मेरे थॉट्स हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल पकड़ी नहीं गई, आई नहीं। मुझे अभी भी आप सुने लंदन ड्रीम के गाने सुने, बहुत अच्छे हैं। फिर मिलेंगे का एक गीत है, ये मुझे बहुत प्रिय है, इतना शायद आपने किसी सुना भी ना हो। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। एक मिनट, जो रवि जी ने जो प्रश्न पूछा वो प्रसून जी कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है आपके बारे में, जब मैं खोजता रहता हूँ कि 17 साल में कुछ आपने किताब छप गई थी आपकी, जब आपकी उम्र 16-17 साल रही थी, और उसमें आपने अपने आप से संवाद किया था। वो कविता थी या गद्य, क्या है वो? देखिए उसकी झलक आपको देता हूँ, बड़ी प्रिकॉशंस लगता है। अभी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं उम्र से ज्यादा, तो शायद मैं उत्तराखंड में था और जिस तरह के लोगों का सानिध्य आपको मिलता है, तो ये मृत्यु पर कविता थी। मृत्यु पर? जी। 16 साल का बच्चा लिख रहा मृत्यु पर। अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है। अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है। अपलक ही हो जाता है मनुष्य जब करता है आलिंगन मृत्यु का। तब कौन सी अनुभूति होती है उसे, जिससे वो कभी नहीं लगता? शायद मृत्यु सुंदर हो। So the thought is that when you look at something beautiful, you say you are stunned. जिसे निर्निमेष भी कहते हैं बंगाली में, जो जानते होंगे, बिना पलक झपकाए आप किसी चीज को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत चीज होती है कि मेरी पलक नहीं झपकी, लेकिन आपकी पलक झपकना बंद हो जाती है जब मृत्यु आती है। तो क्या आपने ऐसा इतना कुछ सुंदर देख लिया है कि अब आप कभी नहीं पलक झपकाएंगे? तो ये मेरा थॉट था उस समय बचपन में का ये है। तो मुझे कहीं तो ऐसा लगता है कि व्हेन आई यूज्ड टू रीड दैट एज अ थिंग आई विल बी कंसीडर्ड प्रिकॉशियस। वो कहता है प्रिकॉशियस बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा सोचता रहता है। तो कहीं वो डायरियों में था, पर आज मैं साहस करता हूँ क्योंकि आप जैसे प्रेम करने वाले लोग हैं कि मैं अब पढ़ देता हूँ। अब मुझे लगता है आई विल नॉट बी जज्ड। आपको चाहे जो लगता हो, मुझे ये लगता है कि भूत के पांव पलने में दिखने लगे थे। नाम बताइएगा और प्रश्न पूछिए। First of all, thank you so much for your contribution to the Indian cinema. And so, sir, I have a question. So basically, these days, the young lyricists are writing with with so much of pressure in their mind, and there's a thing that in their mind, and also a peer pressure, I could say. So when people say that you should put the rhythm words and in the same meter, so how can we take it as, like, should we really write rhythmic words and fit into the meter, and should that be a song, or can we change this era too? नहीं होता नहीं। You will have to find, I think this is a very valid question, and this question also takes to the genesis of a song, where a tune is born first or it's composed to the poetry is written first. ये पहले बहुत होता है, हमेशा से बात होती है।
कई बार शब्दों को आप धुन में डालते हैं, कभी धुन शब्दों में आती है। वाग्यकार होते थे पहले जैसे, तो वाग्यकार जो होते थे वो तो धुन भी और शब्द भी और गा भी सब कुछ सकते थे। इट्स लाइक व्हाट यू कॉल इन वेस्टर्न वर्ल्ड सिंगर सॉन्ग राइटर्स। हमारे यहाँ क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं, धुन बनाने वाले अलग हैं, तो कई बार आपको ऐसा सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपने मीटर में लाइक आपको लेकिन लगेगा नहीं कि वो मीटर में है। यही कि पहले ट्यून बनाई गई। जैसे गाना मैंने लिखा था, रहना तू है जैसा तू, आपको लगेगा कि शायद मैंने लिखा था पहले, फिर ए.आर. रहमान जी ने बनाया। नहीं, पहले उन्होंने ला रा रा ता रा 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 उन्होंने पहले तैयार किया हुआ, उसके ऊपर मैंने लिखा। लेकिन आपको अगर ये पता न लगे तो ये बहुत अच्छी बात है। There is a marriage of the tune and the words. What comes first, it doesn't matter. Whatever comes first, sometimes, like Masakali also I've written to the tune. Masakali, he used to la 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 la. Masakali, कुछ था ही Masakali. कई लोगों से किसी कोई ऐसा शब्द नहीं है मसकली जैसा। मसकली का कोई मतलब नहीं है। अगर मजा ये होता था कि मैं लोगों से पूछता था, प्रसून ये हमने मसकली का बड़ा अच्छा यूज किया, यूज किया। मैंने कहा अच्छा पता है आपको मसकली का? ऑफ कोर्स आई नो, कम ऑन। सो आई मुझे भी बता दो यार क्या मतलब है इसका। एक्चुअली देयर इज नो सच वर्ड, इट्स जस्ट दैट इट साउंडेड नाइस एंड आई पुट इट देयर. Because it was sounding nice in the meter. So sometimes, but as far as you have a good collaborative relationship with the musician you're working with, I think you'll find an answer. But it has to be flexibility from both sides. Sometimes, you have to ask the meter to be elongated because thought is so powerful that if you remove a particular word, but then there has to be respect for poetry from the other side. वो अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है. It is not easy. I kept on writing the title song of Bhag Milka Bhag, that long song, not Zinda and all. But this also I think Shankar, he's one of the people. I tell Shankar that you can compose a morning newspaper. Nothing he can't compose. And when I was writing Over Angrez, Over Angrez में मैंने 2-3 लाइन और ऐड की थी, because it was for me it was not complete, for him the tune was complete. तो डाला ना संधे संधे रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग दे. So he had one line, I put 2. रंग देना रंग देना रंग देना. तो वो अगर वो जगह आपके मन में thought complete नहीं है, you can ask the composer, and he should have that mutual respect for you that is ready to turn it around a bit. It's important. That is work for that actually, that space. No, you collaborate. There has to be a राब्ता होना जरूरी. Sir. Hello sir, Paresh Gule from Bombay. I also work in a corporate, and we know about your journey in the corporate. You are CEO of McCann Erickson and also chairman of. Sir, question. ये सब तो मैं बोल चुका हूँ सर. Question, coming to the question, एडवर्टाइजिंग का कितना पार्ट आपके लिरिक्स में आया? जैसे आपने कहा फिजिक्स आप सिखाते थे, वो कुछ लिरिक्स में यूज किया, वैसे एडवर्टाइजिंग का कुछ तो एक्सपीरियंस लिरिक्स में लाया. फर्स्ट क्वेश्चन. Secondly, out of the many question, many songs, which is the composer or which 3 composer have done maximum justice to your song कि आपका दिल खुश हो गया? दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ. मेरा मैक्सिमम काम जो है ए.आर. रहमान जी के साथ और शंकर एहसान लॉय के साथ है. ज़्यादातर काम हम लोगों ने साथ में किया. उसके बाद जतिन ललित जी के साथ है, और उसके बाद कई और कंपोजर्स हैं, शांतनु हैं, बहुत से हैं जिनके साथ मैंने काम किया है. बट प्राइमरली दैट, एंड एवरीवन हैज contributed to my poetry, and I have hopefully contributed to their compositions. एडवर्टाइजिंग की जहाँ तक बात है, आई थिंक क्योंकि इसको हम संप्रेषण व्यवसाय कहते हैं, मीन्स यू हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट
also what has the profession taught me, biggest thing that profession, advertising and communication has taught me is economy of words. कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश, गागर में सागर जिसे कहते हैं, वो गागर में सागर की कला मुझे, मैं उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू द प्रोफेशन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दैट। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास में। I am Dr. Sandeep. I am a retired professor of medicine and student of Ecology style since my childhood of FP. The opening remarks I would refer, which is brought in, the application of AI to the craft of lyrics or writing, or rather whole script writing. You have also given the positive and the negative aspects of it. But I thought at the back of mind, maybe the censor board would like to use the AI in future while certification. ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। और एक कमेंट है कि कमेंट मत कीजिए सर, इसके सवाल रह जाएंगे आपके बारे में है कि अभी सर आपने सेंसर बोर्ड को यहाँ खड़ा करके हमको अश्योर किया इंडिया को, पूरा रेस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑफ द होल वर्ल्ड, that is so long the such leadership is there, we are assured that good certification will follow. सर पत्रकार का काम सिर्फ इतना ही होता है कि अच्छे लोगों को जनता के सामने रखे, काम तो इनका है। इधर आइए। सुनिए, इनका एआई वाला जो आप कह रहे हैं, देखिए जितना जो कॉम्प्लेक्सिटी इज इन क्रिएशन विद एआई वुड बी आल्सो इन सर्टिफिकेशन, बिकॉज देयर इज सब्जेक्टिविटी देयर, दो नो टू थिंग्स आर नॉट सिमिलर। आप मैं कई बार बोलता हूँ कि आप होलिस्टिक पिक्चर देखिए, आप किसी का एक सीन उठा के देखें तो आपको लगेगा कि ये सीन, लेकिन आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये चीज समझ में आती है, कॉन्टेक्स्ट के बिना आप उसको उठा के देखेंगे। So I think it's important to use human intelligence. We still not reached. Technology will do wonders. I know a lot of things it will do. I am fundamentally a poet and a spirituality person. For me, I don't see a future where spiritually AI will be able to match humans. अगर वो poetically match भी कर दें, तो भैया spiritually तो नहीं कर दें। अब जो समय बचे अब सिर्फ स्टूडेंट्स को देंगे। Good evening, sir. Myself Mansi Sharma. I am student of Communication and Media Department. Sir, I have a question कि क्या लेखन जो है अध्ययन से सीखा जा सकता है if you don't have any background of writing? अध्ययन ही तो बैकग्राउंड है। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, मतलब आप लिखते नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मतलब इंटरेस्ट है बट आपके पास वो कला नहीं है लिखने की, तो क्यों करेंगे आप? हाँ। आपके पास ना इंटरेस्ट है सर बट कला नहीं है, जैसे इंटरेस्ट है और कला नहीं है, मतलब कला से आपका मतलब है क्राफ्ट या डेफिनेटली सीख सकते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट मूल रूप से नहीं है, बीज नहीं है, तो मैं वृक्ष तो नहीं देखता हूँ वहां पे, है ना। बीज होना तो जरूरी है, और वो बीज कहाँ से आता है, कैसे होता है, एंड ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज, I tell all, I work with finance people, I work with a lot kind of people, I work with, मेरे तो colleagues हैं। I think creative लोगों को स्पेशली ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तरह से वायर्ड हैं, उनका जो गुण है जन्मजात वो है, वो शायद परिवेश से आता है, मिलियू से आता है, कहीं से भी आता है। ऐसे ही गणित के लोगों में भी जैसे वो एक और एक का जोड़ गणित में 2 होता है, और एक अनंत हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में। It depends on how you look at it. So I'm saying, don't think that things cannot be learned if you have interest. You can learn anything. Human being is capable of learning anything. But जिद से कोई चीज नहीं सीखी जाती। जैसे आपने कहा इंटरेस्ट है, I want to prove a point, that's why I'm learning it. I don't think you have a great future. But if you have interest and you want to learn it, definitely the whole universe will collaborate. say कि भाई इसको तो ले जाना है, इसके अंदर से कितनी इच्छा है, देखो यार इसको तो ले जाना है वहां पे, है ना। तो कहीं ना कहीं बूंद तो होनी चाहिए कि उससे एक नदी बने। और कोई स्टूडेंट से अगर हाँ अरे अभी तो समय है मैम, इतना जाया करके आप देर से आई तो मतलब अभी आपका मैं बता रहा हूँ, ये जो मैम हम लोगों को इंट्रोड्यूस की, इनसे मैंने पूछा आप क्या करती हैं, तो इन्होंने कहा मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन फिल्म में मेरा इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाई आई एम हियर।
तो अगर इंटरेस्ट है तो जैसे सर ने अंग्रेजी में कहा, मुझे शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया, इधर से किसी ने बोला नहीं कि सारी कायनात आपकी उस इच्छा को पूरी करने में लग जाएगी। और डीजे इनको माइक। हेलो प्रसून जी, नमस्ते प्रसून जी, राहुल लजानी। तो मैं बताना चाहूँगा कि 4 साल की इंजीनियरिंग में आपका लेक्चर मेरा बेस्ट लेक्चर था और बिंदु इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन सेरेमनी में आप थे। तो आई एम बेसिकली एन एक्टिंग स्टूडेंट एंड डूइंग थिएटर इन रुड़की उत्तराखंड since 3 or 4 years. So you were definitely a motivating guru for me to switch from engineering to theatre world, despite my family not allowing me to do so. So sir, my question is, I am from spiritual family too. And there is always an ethical dilemma or a dharma consciousness, we will say, while accepting a role in either theatre, film or web series. Because there are always sometimes romantic scenes or sometimes smoking scenes. But the overall impact it is creating is entertaining, it is creating entertainment. But somehow there is always a dilemma for an actor that whether he should go for the role or he should skip it. That's my question. ये रोमांस से इतनी क्या प्रॉब्लम है आपको यार? रोमांस तो अध्यात्म में हो जाता है, वो तो अध्यात्म में ही हो जाता है। देखिए मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम रोमांस, मैंने बड़े रोमांटिक गाने लिखे हैं। तू भी बताए मुझे ले चल कहीं, मैंने लिखा था। जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वहीं, चक्के देखी अभी चक्के मिस्री की डली हो चली है सब। नाउ अगर आप झटक कर जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। अब ये सब लिखते हैं आप, रोमांस जीवन में है और खूबसूरती है, ब्यूटी है। आप अगर ईश्वर को भी मानते हैं तो वहां भी श्रृंगार है, ऐसा नहीं कि श्रृंगार नहीं है। लेकिन आपकी नीयत क्या है? नियत में अगर आपकी खोट है और नियत में आपको लगता है, ठीक है, और नियत का निर्णय कौन लेगा? आप स्वयं लेंगे। आपको लगता है कि ये चीज से मुझे अच्छा महसूस करेगा, ये मेरी कॉन्शियस को लाइव रखिए, तब आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉन्शियस को अच्छा नहीं लग रहा तो मत करिए। वो चाहे टेबल और प्लेट रखी हो और आपको बोला जाए कि ये करेला खाने का सीन है आपका, करेला खाने से भी अगर आपको अंतरात्मा को कष्ट हो रहा है तो उस करेले में जरूर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको एक श्रृंगार से भरे हुए सीन में आपके आत्मा को अच्छा लग रहा है, आत्मा को, तो शायद वो सही है। वो निर्णय आप ही ले पाएंगे और किसी के बारे में जजमेंटल मत होइए, क्योंकि एक्टिंग में आप जिसे कहते हैं परकाया प्रवेश कर रहे हैं। ये परकाया प्रवेश जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट होनी जरूरी है कि कोई मेरे जैसा नहीं है। व्हाट इज द मूल जीवन का क्या है कि जो मेरे जैसा है वो तो सबको अच्छा लगता है, जो मेरे जैसा नहीं है वो भी अच्छा हो सकता है। मेरी जैसी चीज नहीं खाता है तब भी अच्छा हो सकता है, मेरी जैसी भाषा नहीं बोलता है तब भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि हम लोग, इसीलिए मैंने वर्ड स्पिरिचुअलिटी यूज किया। जब आप किसी चीज से स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं तो ये डिलेमा सारे खत्म हो जाते हैं। फिर आप सजदे में झुका हुआ या प्रणाम करता हुआ आपको एक ही दिखता है, फिर आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देता। आप इंटेंट पे जाते हो, इंटेंट में अगर आपको लगता है गड़बड़ी है तो आप पीछे खींचते हो अपने आप को। दैट इज वेयर आई विल टेक अ डिसीजन फ्रॉम एंड नॉट बी कलर्ड अबाउट, स्पेशली इन अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू impersonate, you have to transport yourself in various situations. आपका कनेक्शन वहां बना रहे, बस बाकी सारे कनेक्शन हो जाए। और आप ना अंग्रेजी वाले रोमांस के चक्कर में मत पड़िए, है ना। भारतीय प्रेम की जो अवधारणा है ना, यहाँ सावित्री और सत्यवान का प्रेम है कि सावित्री को पता है कि ये व्यक्ति कल मर जाएगा, लेकिन वर उसी को चुनती है ना। वो वाला रोमांस में मत जाओ मेरे दोस्त। लक्ष्मी चंद्र फ्रॉम चेन्नई। दो चीज समझनी थी जो आपने आज बोला है ना, लक्ष्य ढूंढता है, उसको वर्तमान की जरूरत नहीं होती है, ऐसा कुछ कहा था। बट जो भी वर्तमान में लक्ष्य फ्यूचर का ही उसको तय करना ही पड़ेगा, वर्तमान से भटक गया एंकर करेगा खुद को, एंकर करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये जो इस समय का जो मोमेंट है, जैसे आप
क्या करते हैं लोग? खाना खाते हैं। अनमाइंडफुल एक्सिस्टेंस, और जो आपका अनमाइंडफुलनेस है कि आपने जो खाया आपको रजिस्टर ही नहीं हो, आपका दिमाग कहीं और था। आपके चेहरे, अगर आपने एक दाना कोई अपने जुबान पे रखा है तो उसके पूरे अस्तित्व को आपको उसका स्वाद लेना चाहिए। दिस इज बीइंग प्रेजेंट इन दैट मोमेंट एंड माइंडफुल। आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडफुल एक्सिस्टेंस एंड इन माइंडफुल आई एम नॉट सेइंग कि आपका कोई गोल नहीं है जीवन में, परम लक्ष्य की ओर तो हम स्वयं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से उसमें कनेक्टेड है, बट इट शुड नॉट मीन दैट यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। आप और में जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर आप नहीं हैं, आपका मन कहीं और है, आप कहीं और भटक रहे हैं, यहाँ पे होने आपका कोई मतलब ही नहीं है। फिर दैट इज ऑल आई एम टॉकिंग। ओके, दूसरी उसी तरह की थी कि मृत्यु के पश्चात जो है वो जीवन वाला कैसे अनुभव कर सकता, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद कौन करेगा? तो वही ना, जो जीवित है वही करेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग किसको मिला? बिल्कुल सही है, पर करेगा जो बात करेगा वो तो जीवित व्यक्ति ही करेगा ना, इसलिए मेरे को कुछ नहीं, ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है ना। दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ह्यूमन अलाइव पर्सन। हाउ वुड यू नो? आप कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे भैया वो हैं भी वहाँ पे, आपको देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? आपके मन में आपने सोचा हुआ है कि वो देख रहे हैं। तो देयर इज अ नैरेटिव एंड ह्यूमन कीप्स स्ट्रगलिंग विद दैट नैरेटिव। हम लोग सब संघर्ष करते हैं समझने की, और मैं भी उस कविता में वही कर रहा हूँ। आई डोंट इवन नो हु इज एंग्री विद मी, आई डोंट इवन नो व्हाट इज देयर बियॉन्ड दिस लाइफ, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अ प्रूफ ऑफ व्हाट इट इज। सर हिंदी में कहते हैं विरुद्धों का सामंजस्य। सर अब हम इसको समाप्त करेंगे, लेकिन प्रसून जी कुछ कविताएं सुना दीजिए आप। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, वैसे सवाल नहीं है तो बैठ जाइए। एक मिनट सर, कविता की बात कर रहा हूँ मैं। आप सुनिए, 4 साल पहले प्रसून जी मैंने आपसे एक कविता सुनी थी, बहन हमेशा बड़ी होती है। मैंने वो कविता जाके मेरी छोटी बहन को सुनाई, क्योंकि वो मेरे दिल की बात कर रहे थे आप। वो उसने कहा ऐसा लिखा है उन्होंने? मैंने कहा हाँ है, मैं सुन के आया हूँ गोवा से। तो सर वो कविता जरूर सुनाइए। अरे वाह, क्या बात है। सर एक सवाल और कुछ? हाँ बताइए। वो हमारा समय खत्म हो गया। देखिए वकील साहिबा खड़ी है मेरे पीछे। अब आप लोग, मैम हमने थोड़ा देर से शुरू किया था, 5-6 मिनट तो 3-4 मिनट तो दे दीजिए। हाँ जी जी। नमस्कार। और मैंने सोचा कि इतनी बड़ी हस्ती सामने है तो मैं नाम बताइए मैम, अपना नाम बताइए। मिस ना करूं। मैं डॉक्टर दीपिका धीरू, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ प्रसून जी कि वो तलत महमूद का गीत मेरा बड़ा फेवरेट है, मोहब्बत ही ना जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। तो मुझे हमेशा इस चीज़ का हो रहा है कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। आप इतने महान कवि हैं तो आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे को समझ आ गई वो बात की। जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। ये जो है देखिए, एक तो वर्ड प्ले है और जैसे कि तासीर होती शब्दों की अलग। जब आप प्रेम कहते हैं, जब आप प्यार कहते हैं, जब आप मोहब्बत कहते हैं, हर एक में अलग अलग उसके साथ, जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि शब्द जो है भावनाओं का, अनुभूतियों का कैप्सूल है। It comes with a certain set of imagery. So I think both have a different set of imagery which gets unlocked into your mind, and उससे जो भाव सृजन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। इसलिए मैंने जैसे कहा जी और जी मिचलाता है, और एक गर्भवती महिला कहती है कि जी कर रहा है मेरा, खट्टा खाने को जी कर रहा है, दिल नहीं करता, उसका जी करता है। तो जी में जी प्लेस्ड एंड लोकेटेड इन सम प्रिसाइज। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत और प्रेम अलग अलग तरह से प्लेस्ड है, और इट गेट्स डिकोडेड इन योर हेड विद अ सर्टेन म्यूजिक। So that's the reason 2 different words are used, and it has been sung so beautifully and composed so well. That's why it causes another, it creates another impression after that. Thank you sir. धन्यवाद।
कविता जो सर ने कही है वो। थैंक यू सर जी, आपके आग्रह पर ये भाग मिल्खा भाग के बाद जब मैं बहन भाई का रिश्ता एक्सप्लोर कर रहा था तब मैंने लिखा था, गाना नहीं बन पाया था, कि बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, उसे मालूम होता है तुम देर रात घर लौटोगे, तभी चुपके से दरवाजा खुला छोड़ देती है। पिता की नाराजगी में एक धीमा सा धागा जोड़ देती है। उसे मालूम होता है तुम झूठ बोल रहे हो और मुस्कुराकर उसे ढक देती है। तुम्हें पता नहीं पर हर बार वो तुम्हें खुद से आगे रख देती है। वो अक्सर हार कर भी जीतती रही है तुमसे, जिससे कभी चोट नहीं लगती, ऐसी एक छड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, पर राखी के दिन जब एक पतला सा धागा बांधती है कलाई पर, मैं कोशिश करता हूं बड़ा होने की, मैं कोशिश करता हूं बड़ा होने की। धागों के इसरार पर ही सही कुछ पल के लिए मैं बड़ा होता हूं, एक मीठा सा रिश्ता निभाने के लिए खड़ा होता हूं। नहीं तो अक्सर बहन ही तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास। क्या बात, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत आभार, आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना, और ईफी और आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार। और क्योंकि शाही सवारी सबसे बाद में आती है, इससे प्रसून जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकाला और आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम सबों के लिए, आपसे बात करना हर बार कुछ नया दे जाता है। मैं इनसे कितनी बार बात कर चुका हूं कि अच्छा जब इन कहीं से ये प्रपोजल आता, प्रसून जी से बात करना है, तो मुझे लगता है मैं बात क्या करूंगा, मैं बहुत घबराता हूँ सवाल तैयार करते हुए, ये करते हुए, लेकिन जब इनसे बात करके जाता हूँ तो मैं समृद्ध होकर जाता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी समृद्ध होता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल एज ऑलवेज ग्रेटिट्यूड। थैंक यू प्रसून जोशी जी।